हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे वर्ल्ड क्लास स्मार्ट एंड फ्यूचर रेडी न्यू पंबन ब्रिज। भाई अगर गलत नाम बोल रही हूँ तो भाई मैं सॉरी फॉर दैट। इंडियाज इंजीनियरिंग मार्वल। ओ ये वही ब्रिज है जो अब ऊपर लिफ्ट होता है और फिर उसके नीचे से जो है शिपें जाती हैं। जो इस टेक्नोलॉजी का जब बनने लगा था तब हमने वीडियो की थी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि भैया वो इंडिया में बनेगा। और उसके साथ उन्होंने दिखाया भी है कि भैया वो पुराना ब्रिज और बना है और यहाँ पे नया ब्रिज बनेगा। वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Rameshwaram, a place of eternal devotion and spirituality on the Pamban Island, where revered Ramanath Swami Temple, one of the 12 auspicious Jyotirlingas of Lord Shiva, and one of the 4 dhams, blesses humanity, where Prabhu Ram worshipped Lord Shiva, where belief and reality come together. Today, on the auspicious day of Ram Navami, we witness history in the making as the new Pamban Bridge, India's first vertical lift railway sea bridge, a modern marvel embodying heritage and legacy, is being dedicated to the nation. Built over a century ago, the old bridge was a link between the mainland and the Holy Island, but with time अच्छा, तब ऐसा होता था, यूं खुलता था वो जैसे and closure due to repair works. The new Pamban Bridge, built to end all such operational issues, is much stronger, world-class, smart and future-ready. With over 2-kilometer length, 99 spans and a 72.5-meter lift span that gracefully rises to let ships pass. This is more than steel and concrete, replacing manual operations with speed and precision. The bridge uses an advanced electromechanical system to lift the span up to 70 meters. It is a rare blend of Adhyatma and Adhanikta, Nutan and Puratan, where tradition meets technology and prayer meets progress. हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। बिल्कुल ट्रू। The world-class Pamban Bridge does not just सारे कलर्स नेशनल फ्लैग पे किए हैं। From Dhanushkodi all the way to Ayodhya, it connects crores of hearts across Bharat and beyond. This bridge is a testament to a government that delivers what it promises. From the foundation stone laid by Prime Minister Narendra Modi ji in 2019 to its dedication to the nation on the auspicious day of Ram Navami, every milestone reflects मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे याद दिलाने में क्वेश्चन पूछना है। Even during the once-in-a-century pandemic, the work never paused, which reflects the steadfast resolve and national will. Crafted with care and vision, it brings together the brilliance of modern engineering and the wisdom of timeless design, where trains glide above and ships sail freely below. Today, a new train begins its maiden journey over this bridge, bringing the sacred town of Rameshwaram closer to the rest of the country, boosting pilgrimage, tourism, and local livelihoods. It is a proud milestone on the path to Vikasit Bharat, a nation rising with world-class infrastructure rooted in its values and powered by its people. Pamban Bridge is a testimony to the fact that today Bharat builds non-stop and with the spirit of Virasat Bhi Vikas Bhi, where heritage flows into the future, inspiring every Indian. भैया ब्यूटीफुल। अच्छा, पहले तो मेरे क्वेश्चंस मैं पूछ लूं, जिसके पास अगर ये दे सकते हैं तो ठीक है, आप भी उसके आंसर्स देना। सबसे पहले जो ये वाला ब्रिज बन रहा है ये ऐसे ऊपर जाएगा, राइट?
अब वो जो पुराना ब्रिज था जो ऐसे करके खुलता है ताकि उसके नीचे से शिप्स चली जाए, वो भी उसके साथ पैरेलल ही है, पर वो तो नीचे है, तो उसको क्या हमेशा ऐसे खोल के ही रखेंगे कि उसको भी बंद खोल करना पड़ेगा? मेरे ख्याल साथ से में डिसमेंटल कर देंगे उसको, है उसको डिसमेंटल करें, क्योंकि अभी तो मैं वही देख रही थी कि ये तो ऊपर चला गया पर वो तो अभी बंद पड़ा है, और अगर वो खराब है और पुराना हो गया है तो फिर शिपें तो जा ही नहीं सकती क्योंकि वो तो नीचे बंद पड़ा हुआ है। तो उसको यहाँ तो खोल के रखो, यहाँ फिर डिसमेंटल, जंग वंग लगा हुआ है, खराब है, डिसमेंटल कर देंगे। मगर इसमें ये तो भी जब तक नहीं कर रहे तब आप तक क्या करेंगे? तो पहले डिसमेंटल कर देना चाहिए था ना। कर देंगे डिसमेंटल भी धीरे-धीरे, मगर पॉइंट ये था कि समझ नहीं आया कि वो मेरा एक और क्वेश्चन था आप यार, सीधा एक टॉल ब्रिज बना सकते थे। हाँ वही मैं पूछने वाली थी कि ये जैसे उसके साथ ही एक गाड़ियों वाला ब्रिज इतना ऊंचा बनाया है, तो एक ब्रिज ट्रेन के लिए सीधे ऊपर ऊंचा क्यों नहीं बनाया? उससे कहीं से भी निकल सकती थी बोट्स और शिप्स, अब वो बस उसी पैच से निकल सकती है। यही मैं सोच रही थी कोई रीजन है, कंस्ट्रेंट्स होंगे क्या, आई डोंट नो, क्योंकि आप एक नहीं, पर एक ब्रिज तो बना ही हुआ है सड़क वाला, और उतना पैसा लगता है क्योंकि ये अपलिफ्ट करने वाला ये ज्यादा महंगा पड़ा होगा। नहीं तो मेरे कोई रीजन होगा, क्या रीजन? एक और ब्रिज बन सकता है इसके पैरेलल, उतना ऊंचा, उसके ऊपर से ट्रेन जा सकती थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली अब ट्रेन को ऊपर लेके आ सकते थे, ऊपर से ले जा सकते थे, क्योंकि ब्रिज के ऊपर जाना ट्रेन तो ग्रेजुअली ऐसे कर करके दूर से ट्रैक आ रहा होगा, धीरे धीरे ऊपर कर देंगे और यहाँ से नीचे लेके जा सकते थे। नहीं, पर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जब ट्रेन अगर कोई शिप भी आएगी तो भी इनको ब्रिज को इसको इतने पार्ट को तो ऊपर करना पड़ेगा, तो उस टाइम ट्रेन तो ऊपर से जा ही नहीं सकती, नहीं तो आधी ट्रेन ऊपर होगी आधी ट्रेन नीचे होगी। तो मेरे तो समझ नहीं आया, जो भी डिजाइन उनका कंस्ट्रेंट्स है मुझे पता नहीं, पर क्यों किया? क्वेश्चन यही था कि आप जो है इसके पहले एक और ब्रिज बना सकते थे जो उतना ही ऊंचा हो, जितना रोड वाला ब्रिज है उतना ही ऊंचा बना लीजिए। सिर्फ ये है कि वहां पे ट्रेन स्टेशन अगर बहुत ही पास है तो उतना लिफ्ट नहीं कर पाएगा ब्रिज के ऊपर। गाड़ियां भी तो कर रही हैं, गाड़ी अलग है, ट्रेन अलग है, तो कहीं ना कहीं से उनको नहीं, मैं कह रही हूँ अगर कार ऐसे उस ब्रिज पे चढ़ के जा पा रही है तो क्या ट्रेन नहीं जा पाएगी? क्या जा पाएगी? आई डोंट नो, मतलब क्यों नहीं किया, पता नहीं, मैं तो इतना स्टीप था, क्या था, क्या रीजन था उसमें? उसमें खर्चा उसमें ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सी के पास रहना भी थोड़ा गड़बड़ है, मतलब जो भी है अगर स्टॉर्म आते हैं तो पूरा वॉश आउट हो जाएगा ये एरिया पूरा। यहाँ ट्रेन जो है वो ट्रेन के साथ इतनी हाइट डेंजरस है क्या जो इस वजह से नहीं कर रहे? तो स्विट्जरलैंड में ट्रेन जाते हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं है, और चेनाब ब्रिज बना हुआ है इतना ऊंचा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ डिजाइन कंस्ट्रेंट होंगे। मगर यहाँ पे जब तूफान अगर मान लीजिए आता है तो ये तो पूरे ट्रैक की ओर पानी चले जाएगा, मगर उनका कोई रीजन होगा ये कि सिमिलर बनाने की चाहते होंगे, एक्साइटमेंट है उसके लिए मेरे ख्याल से बनाया होगा। बनाना रीजन क्या है कि आप बनाना चाहते थे कि भाई हमने आज यहाँ पे बनाना है? डेफिनेटली अगर आप ब्रिज बनाते हैं ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, वो भी एक और बात भी है क्या कि अगर आपको ब्रिज बनाना है ऊंचा उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा कंपेयर टू दिस। नहीं, मुझे लगता है सस्ता लगेगा शायद, इतना एलिवेशन लेके जाना, है जो बनाई इस एलिवेशन जाना करना वरना पूरा टेक बोर बताना भैया। पर इसमें एक गड़बड़ तो यही है कि जब ऊपर करना होगा ये नहीं है कि चीजें चलती रहें, क्योंकि वो ऊपर हो गया फिर भी ट्रेनें चलती रहे तब तो ट्रेन को रुकना ही पड़ेगा। उस केस में भी ट्रेन को रुकना ही पड़ रहा था, तो दोनों केस में लिफ्ट वाली भी और इस टाइप की दोनों में। और एक लिमिट तक शिप्स आ सकते हैं, बहुत बड़े शिप्स नहीं आ सकते। और नहीं, मैं तो ये सोचूं कि कंजस्ट जैसे ज्यादा शिप्स हो गए तो फिर वहां पे लाइन जैसे लगती है सड़कों पे, जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है तो वैसे हो जाए। अगर ऊंचा होता तो कहीं से भी निकल लो, क्योंकि आगे जो दूसरा ब्रिज है गाड़ियों वाला वो तो वैसे ही ऊंचा है ही है। भैया प्लीज बताना ये, क्योंकि मुझे लगता है कोई रीजन है तभी बनाया होगा, ऐसे नहीं किया होता होगा, वो रीजन मुझे पता करना है। पर है बड़ा सुंदर वो जो जैसे ऊपर उठता है नीचे उठता है ना, वेरी फैसिनेटिंग। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।